हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ मीना यादव, मैथमेटिक्स मेंटोर। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर से टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टॉपिक नेम्स आर Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम एंड Rolle's थ्योरम। So let's see how we are going to proceed in our today's lecture. So let's see our today's goal. First of all, we will start with Lagrange's mean value theorem. In short, we call it as LMVT. After that, we can go with some of the questions to practice and make this topic clear. Also, we'll see some of the previous year asked question that has already been asked in previous year, that is in JEE Mains exam. Also, we'll go after that, we can go with the theory part of Rolle's theorem and we'll see how it is different from LMVT. Also, we'll see how it is a special case of LMVT itself. After that, we can go and we can take some of the questions based on Rolle's theorem and we will see many more questions from JEE Mains as well as from JEE Advanced. So this is going to be our today's flow in our today's lecture. So let's start with Lagrange's mean value theorem and let's see what are the conditions and what are the definition part of LMVT in details. So our first topic is Lagrange's mean value theorem, that is LMVT. So our topic is Lagrange's mean value theorem. So let's see what are the conditions and what are the geometrical representation of LMVT, how to apply all these things we are going to cover in today's class. So for LMVT, three conditions must be satisfied and those are three conditions. That is, first is, let's say function f is continuous, and before this LMVT is applied on an interval. हमारे पास एक इंटरवल दिया होगा, उसके बीच में ही हम LMVT अप्लाई करेंगे. लेट्स से दैट इंटरवल इज लेट्स से x belongs to a to b. So here function f is continuous in closed interval a to b. Closed interval a to b मतलब क्या है कि जो हमारा फंक्शन होना चाहिए वो क्लोज इंटरवल बाउंड्री पॉइंट्स पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए in the given interval a to b. Second condition should be function f is differentiable. Function f is differentiable in open interval a to b. In open interval a to b. For when it comes to differentiability, तो बाउंड्री पॉइंट्स पे अगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा देन ऑल्सो इट्स ओके, बट अगर डिफरेंशिएबल है तभी हमारे लिए इस कंडीशन के लिए सेटिस्फाई होगा LMVT के लिए. तो हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए से बी में वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए. एंड द थर्ड पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए, दैट इज एफ ऑफ ए, शुड नॉट बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है फॉर एनी गिवन फंक्शन इन दिस इंटरवल ए टू बी, देन फिर यहाँ मैं लिखता हूँ देन there exists at least one C belongs to A to B such that f dash C is equals to f of B minus f of A divided by B minus A. तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया. अभी हम इसको समझेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के साथ भी, so as to clear our doubts. तो हमारे पास कंडीशंस क्या है, लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन दिया हो, लेट f is defined such that function f is continuous in closed interval a to b, function f is differentiable in open interval a to b, and f of a is not equals to f of b, then there exists at least one c. At least is important, कम से कम हमारे पास एक ऐसा c की वैल्यू जरूर आएगी such that f dash c equals to f of b minus f of a upon b minus a. अभी इस कैसे रिजल्ट आया इसको हम समझते हैं फ्रॉम ग्राफ. तो लेट्स से अगर हमारे पास कोई ग्राफ दिया हो, किसी भी फंक्शन का ग्राफ दिया हो कुछ इस तरीके से, ये x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है. सिंस इट इज गिवन दैट हमारे पास एक इंटरवल होना चाहिए दैट इज a टू b. तो लेट्स से x इक्वल्स टू ये वाला पॉइंट है और हमारे पास x इक्वल्स टू b एक ये वाला पॉइंट है. फंक्शन हमारा इस तरीके से डिफाइंड है कि यहाँ से लेट्स से ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास, ये फंक्शन f का ग्राफ है लेट्स से, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा a कॉमा एफ ऑफ ए. तो ये हो जाएगा a कॉमा एफ ऑफ ए.
और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास b कॉमा एफ ऑफ बी। सो लेट्स से ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो इस गिवन फंक्शन के जो ग्राफ है पॉइंट ए और पॉइंट बी अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट। तो अगर लेट्स से हम इसको ज्वाइन करते हैं इस स्ट्रेट लाइन को ए बी को, सिंस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन तो इसके पास हम इसका स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो स्लोप निकाल लेंगे तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो हमारे पास स्लोप आ गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ पे भी सेम चीज लिखा हुआ है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो अब इसका क्या मतलब है कि एफ डैश सी की वैल्यू इसके बराबर आएगी। समझो बात को। सो हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है, हमने इसका टेंजेंट निकाल लिया। सो जो थ्योरम हमारे पास एलएमवीटी है, इट स्टेट्स दैट कि जो हमारा इसका टेंजेंट आएगा उसका जो स्लोप आएगा, we are going to have at least one straight lines which is going to be parallel to this line AB। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लाइन AB है इसके पैरेलल कई मतलब एटलीस्ट एक लाइन जरूर ड्रॉ हो पाएंगे, एटलीस्ट ऐसा टेंजेंट जरूर बना पाएंगे हम जिसका स्लोप AB के बराबर होगा। इन दिस केस वी हैव गॉट 3 पॉइंट्स, लेट्स से दिस इज C1, लेट्स से दिस पॉइंट इज C2 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास C3। इस केस में हमारे पास 3 पॉइंट आ रहे हैं, बट एटलीस्ट एक पॉइंट पॉसिबल हमेशा होगा विद दिस कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब कि हमारे पास एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा ए और बी के बीच में जहां पे एफ डैश सी की वैल्यू इसके बराबर आएगी, दैट इज स्लोप ऑफ ए बी। जो इसके एंड पॉइंट है उसका जो स्लोप होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा यहाँ से कि जो ये वाली लाइन है, ये और ये तीनों लाइन, इन तीनों लाइन का स्लोप कितना होने वाला है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। So this is the theory part of LMVT. Let me revise once again. So for LMVT to apply, we must have the function such that f is continuous in closed interval a to b. फंक्शन जो होना चाहिए वो a और b के बीच में पूरा कंटिन्यूस होना चाहिए। एंड पॉइंट्स को छोड़ के पूरा फंक्शन जो होगा a और b के बीच में डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। एंड f of a is not equals to f of b, as we can see here, f of a is not equals to f of b. f of b is greater than f of a in this case. सो अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हमारे पास ऐसा सी जरूर आएगा ए और बी के बीच में जहां पे इसका जो स्लोप होगा उसके बराबर आएगा उस पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो सो एफ ऑफ बी इज एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो लेट्स प्रोसीड विद सम ऑफ द क्वेश्चंस वेयर इन वी कैन प्रैक्टिस हाउ टू अप्लाई एलएमवीटी और कितने वैराइटीज बन सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। लेट्स गो विद द क्वेश्चंस पार्ट। थ्योरी पार्ट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा थ्योरी पार्ट है इसका। में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि हमें और क्लैरिटी आ जाए। लेट्स टेक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस फ्रॉम विच वी कैन क्लैरिफाई ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू आवर टॉपिक एंड वी विल बी एबल टू अप्लाई द थ्योरम। सो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई इफ एलएमवीटी इज एप्लीकेबल और नॉट। इफ यस, फाइंड सी। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू वेरीफाई इफ एलएमवीटी इज एप्लीकेबल और नॉट। सो लेट्स सी वन बाय वन। अगर हम फर्स्ट फंक्शन की बात करें, so we have first problem, that is f of x is equals to x upon x plus 2। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये LMVT का प्रॉब्लम है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एक इंटरवल दिया होगा, विद इन दैट इंटरवल हमें फंक्शन के बारे में पता करना होगा। कुछ डिफ्रेंसिएशन निकालने पे उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कहीं 0 आ रही है या नहीं आ रही है उस इंटरवल के बीच में। ऑल दीज थिंग्स आर आइडेंटिफिकेशन टू अप्लाई LMVT। सो इन दिस केस हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, इंटरवल दिया है x बिलोंग्स टू 2 से 3। नाउ वी नीड टू चेक LMVT इज एप्लीकेबल और नॉट। सो हाउ वी विल प्रोसीड, आवर फर्स्ट कंडीशन इज वी विल सी क्या फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं इन दिस इंटरवल, सिंस इट इज अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हुआ है फंक्शन। अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है। सो ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस इन द गिवन इंटरवल 2 से 3 कंटिन्यूअस है। अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। अगर हमारा ये डिफरेंशिएबल भी है, इट मीन्स कि कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b as well as it is differentiable in open interval a to b. Also we will check function's value at this endpoints. So f of 2 is going to be equals to 2 upon 2 plus 2, that is equals to 2 upon 4, and f of 3 is going to be equals to 3 upon 3 plus 2, that is equals to 3 upon 5. We can clearly see
the function's value at the end points are not equal, so we can go with applying LMVT. So what we will do, apply LMVT on this interval. Apply. So we can see here, हमने verify कर लिया है कि LMVT is applicable. LMVT is applicable. Why so? Because in the given interval, function is continuous in closed interval 2 से 3. Also, it is differentiable in 2 से 3. In the interval 2 से 3, we can write specifically 2 to 3. यहाँ पे लिख सकते हैं हम open interval 2 से 3. So, and also function value at the end points are not equal. It means LMVT is applicable. So now what we will do, we will apply LMVT for interval for x belongs to 2 से 3. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, f dash c is equals to f of 3 minus f of 2 upon 3 minus 2. f dash c is equals to f of b minus f of a upon b minus a. So ये हमारा LMVT का जो हमने आउटकम देखा था वो यही था हमारे पास. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको. f of 3 की वैल्यू हमने निकाल लिया है ऑलरेडी. यहाँ पे है हमारे पास 3/5. So f of 3 is going to be equals to 3/5 minus f of 2 की वैल्यू कितनी है, 2/4. तो हो जाएगा 2/4 और we can write 1/2 divided by 3 minus 2, that is 1. So f dash c is equals to this much. 3 2 is 6 minus 5 upon 10, that is equals to 1/10. So f dash c is equals to 1/10. We need to find the value of c. How we will do this? Since we have the actual function as f of x equals to x upon x plus 2, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. एंड देन वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंशिएशन. जो डिफरेंशिएशन के बाद जो हमारे पास जो फंक्शन आएगा, जो वैल्यू आएगी, उसको वी विल इक्वेट विथ 1/10. सो लेट्स सी क्या होता है हमारे पास. तो हमारे पास है f ऑफ x इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 2. हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f डैश x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस x इंटू 1 u स्क्वायर. इफ इट इज u अपॉन v, देन v स्क्वायर न्यूमरेटर में आएगा v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v. डिवीजन रूल अप्लाई किया है बेसिकली. तो यहाँ पे जो सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 अपॉन x से x कट जाएगा, 2 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ f डैश x. हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस वैल्यू को 1/10 के इक्वल करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/10. So we can equate these values so as to get the value of c. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/10. तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी बेसिकली वही हमारे पास क्या है, c की वैल्यू है. तो ये हो जाएगा हमारे पास f डैश c. तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 20 इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर. Also we can write it as x plus 2 is equals to plus minus root 20, that is 2 root 5. यहाँ से हो जाएगा x equals to plus minus, or we can write it as 2 root 5 minus 2, or we can write x equals to minus 2 root 5 minus 2. Now we need to check जो हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं x के, तो हमारे इंटरवल में आ रहे हैं कि नहीं. हमारा इंटरवल कितना है, 2 से लेकर 3 के बीच में. So which number comes between 2 to 3? We need to check. This is equal to something around 2 into 2 point something. Let's say 2.2 minus 2. It will be equals to 4.2 minus, that is 2.4. Around this is the value which comes under interval 2 से लेके 3 तक. So this is going to be our actual answer basically, because this is going to be less than 0 and we need to get answer between 2 से लेके 3 तक. तो दिस इज नॉट आवर आंसर एक्चुअली, दिस इज आवर गोइंग टू बी आंसर. सो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, सी इज इक्वल्स टू 2 root 5 minus 2. दिस इज आवर आंसर. सो लेट मी रिवाइज वंस अगेन हाउ वी हैव अप्रोच द सॉल्यूशन. सो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था x अपॉन x प्लस 2 एंड वी हैव द इंटरवल x बिलोंग्स टू 2 से 3. तो वी नो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन द गिवन इंटरवल. ऑल्सो दिस f of 2 is not equals to f of 3. It means that we are ready to proceed with apply LMVT. So हमने क्या किया, LMVT अप्लाई किया इस फंक्शन पे इन दिस इंटरवल.
So we know f dash c equals to f of b minus f of a upon b minus a. From here we got f dash c equals to 1/10. अब हमारे पास f dash c की वैल्यू 1/10 आ रही है. We need to find the value of c. जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू 1/10 आए. हमारे पास जो एक्चुअल फंक्शन था हमने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट किया. डिफरेंशिएट करने के बाद हमें मिला 2/x+2 का होल स्क्वायर. तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को इक्वेट किया 1/10 से, सो एज टू गेट द वैल्यू ऑफ c. तो जब हम इक्वेट किए 1/10 को, तो हमें मिला यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही थी, 2√5 - 2 as well as -2√5 - 2. But we know that x should be belongs to 2 से 3. So in this range, this value feasible. This is the feasible value, and this value is not feasible. So we will deny this answer, and we will go with this answer as the final answer. So it was our first part. Let's move to the second part. That is fx equals to root में x minus 1 and x belongs to 2 से लेके 3 तक. So first of all, we will verify if we can proceed with LMVT or not. If yes, we will find the value of c. So our second part is, हम क्या करेंगे वापस से, सॉल्यूशन नंबर 2, f of x is equals to रूट ओवर x minus 1, x belongs to 2 से लेके 3 तक. हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है. तो अब इस इंटरवल में हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं. अगर हम देखें इसकी डोमेन की बात करें तो x minus 1 जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. इट मीन्स कि x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए. हमारे पास इंटरवल 2 से 3 है, इट मीन्स कि फंक्शन क्या होगा, हमारा कंटिन्यूअस तो होगा. सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इस इंटरवल में कंटिन्यूअस हो जाएगा 2 से लेके 3 के बीच में. एज वेल एज इट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्योंकि ग्राफ जो बनेगा इसका कुछ x इक्वल्स टू 1 की अगर ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट. तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, ये हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा इन द इंटरवल 2 से लेके 3 तक. तो ये अगर हमारा ग्राफ बन जाएगा बेसिकली 2 से लेके 3 के बीच में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से, सिंस वी नो दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो हम क्या करेंगे, एलिमिटीज पे अप्लाई कर सकते हैं. डिफरेंशिएबल भी है हमारे पास इन द इंटरवल 2 से लेके 3. ऑल्सो लेट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f of 2. f of 2 की वैल्यू हो जाएगी 1 और f of 3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √2. रूट के अंदर 3 - 1 दैट इज √2. सो वी आर रेडी टू अप्लाई LMVT. क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे LMVT यहाँ पे. नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c. अप्लाई LMVT. तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, f dash c इज इक्वल्स टू f of b कितना हो जाएगा, √2 minus 1 upon 2 - 1 that is 3 - 2. f of b minus f of a upon b minus a, and this value is equals to √2 - 1. अब हमारे पास डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी आ रही है, √2 - 1. तो हमारे पास जो एक्चुअल फंक्शन है हमारा, उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. सो आवर एक्चुअल फंक्शन इज f of x इक्वल्स टू कितना है, रूट में x - 1. नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट. सो इट विल बी 1/2 रूट x - 1 इंटू 1. तो ये हो जाएगा हमारे पास. अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर लेंगे सो एज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c. कि x से कौन से ऐसे वैल्यू पॉइंट पे ये इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है √2 - 1, एंड दैट पॉइंट इज c. तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 रूट में x - 1 इज इक्वल्स टू √2 - 1. तो सॉल्व कर लेंगे यहाँ से. तो 1/2 टाइम्स में √2 - 1 इज इक्वल्स टू रूट में x - 1. यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड. सो आफ्टर स्क्वायरिंग वी विल बी गेटिंग एज 1/4 इंटू √2 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x - 1. तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा x - 1 इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स में √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 + 1 3 - 2 √2. ये हो जाएगा हमारे पास. +1 कर लेंगे यहाँ से तो x की वैल्यू आ जाएगी. x की वैल्यू कुछ रूट रेशनल वगैरह में आ रही है. तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लेते हैं. तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1 + 1/4 टाइम्स में 3 - 2 √2. दिस इज आवर फाइनल आंसर. लेट्स कैलकुलेट और कितना हो सकता है ये. तो जाएगा 12 4 × 12 - 8 √2 प्लस 1/12 - 8 √2. अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कुछ, तो यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है.
ये वैल्यू कुछ आ जाएगी हमारे पास, जस्ट टू चेक कि हमारा जो वैल्यू आ रही है वो 2 से 3 के बीच में आनी चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1/4 टाइम्स में 3 माइनस 2 इंटू 1.4, तो ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स में 3 माइनस 2.8, दैट इज 1/4 इंटू 0.2, ये हो जाएगा 1/0.8, दैट इज 10/8। तो ये वैल्यू हो जाएगी समथिंग 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 प्लस 1 पॉइंट समथिंग दैट इज 2 पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स 2 और 3 के बीच में आ रहा है हमारा वैल्यू। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। बस ये चेक करने की जरूरत थी नहीं, जस्ट टू मेक यू वेरी क्लियर कि हमारा जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा सी की, वो हमेशा 2 और 3 के बीच में ही आएगा। सो बेसिकली आवर सी इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1 प्लस 1/4 टाइम्स में 3 माइनस 2√2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस पॉइंट पे बेसिकली क्या हो रहा होगा, अगर हम ग्राफ से समझे थोड़ा, तो हमने अभी ग्राफ प्लॉट किया था √x-1 का। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, x इक्वल्स टू 1 की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो √x ग्राफ कैसे बनता है, बेसिकली √x ग्राफ बनेगा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 0, इस केस में x इक्वल टू 1 हमारा हो जाएगा एक्सिस। तो यहाँ से ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। व्हेन इट कम्स कि 2 और 3 के बीच में, तो लेट्स से दिस इज लाइन x इक्वल्स टू 2 और ये लाइन हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 3। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो ये वाला पॉइंट जो एक टेंजेंट एक लाइन बन रही है, जो इसके पैरेलल हमारे पास क्या होगा, इसके पैरेलल एटलीस्ट एक लाइन ड्रॉ होगी जो कि समथिंग कुछ यहाँ पे आ रही होगी, लेट से किसी भी पॉइंट पे ये वाली लाइन। तो ये जो पॉइंट है यही पॉइंट सी होगा जब हम इस पे एक्स एक्सिस पे इमेज लेंगे, तो ये पॉइंट सी हो जाएगा हमारे पास। एंड दिस पॉइंट सी, इसकी वैल्यू कितनी है, ये 1 प्लस 1/4 टाइम्स में 3 माइनस 2√2। सो दिस इज आवर ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन एंड दिस इज द थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट से जो हमने कैलकुलेट किया वैल्यू सी की, वो ये आ रही है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या होगा, ये फंक्शन इस पे हम अप्लाई कर पाएंगे एलएमवीटी या नहीं अप्लाई कर पाएंगे, एंड इफ कर पाएंगे तो we'll find the value of c. So we have been given third function as f of x is equals to f of x is equals to 1 minus x का power 2/3, x belongs to -1 से +1। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो x का पावर हम लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर, x बिलोंग्स टू -1 से +1। अगर हम थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्व करें तो वी कैन सी इफ दिस इज द f ऑफ x, तो अगर हम यहाँ पे -x लगा देंगे, x की जगह पे f ऑफ -x सब्स्टिट्यूट करें इसमें, तो इट विल बी 1 माइनस x का पावर 1/3 इसका होल स्क्वायर। सिंस ओवरऑल स्क्वायर लगा हुआ है तो जो माइनस वैल्यू आएगी यहाँ से वो प्लस हो जाएगी। बेसिकली इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस x का पावर 2/3 हो जाएगा ये। बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ x। सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि f ऑफ -x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है f ऑफ x। इट इम्प्लाइज कि हमारा जो ये फंक्शन है f ऑफ x 1 माइनस x पावर 2/3, इट इज अ इवन फंक्शन। fx इज इवन फंक्शन। अब अगर ये इवन फंक्शन है तो ग्राफ में हमने पढ़ा था कि हमें पता होता है ग्राफ से कि अगर इवन फंक्शन है तो क्या मतलब हो जाएगा, इट विल बी सो अलोंग y एक्सिस वी कैन ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ दिस ग्राफ। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा बेसिकली। सो अगर हम इसी ग्राफ की बात करें, अगर y इक्वल्स टू 1 माइनस x पावर 2/3, सो लेट्स प्लॉट अ रफ स्केच। y इक्वल्स टू 1 माइनस x पावर 2/3, तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस x पावर 2/3। तो यहाँ से अगर हम बात करें x पावर 2/3 के ग्राफ बनाए, अगर y इक्वल्स टू x पावर 1/3 के पहले बनाते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा y इक्वल्स टू x पावर 1/3। अब अगर हम इस पर स्क्वायर लगा देंगे तो हमारे जितनी नेगेटिव वैल्यू आ रही थी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी बेसिकली। तो नीचे कुछ इसी तरीके का होगा, ये जो ग्राफ नीचे जा रहा था, नाउ दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगा बेसिकली। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इट्स जस्ट अ रफ स्केच सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो ये हो जाएगा x का पावर 2/3 का ग्राफ, ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल्स टू x का पावर 2/3। अब हमें कन्वर्ट करना है इस वाले फॉर्म में, तो -x लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा। नाउ दिस ग्राफ हैज बिकम द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू माइनस x पावर 2/3। ये अभी तक जो बना है ये -x पावर 2/3 ग्राफ बन गया। अब हमें क्या करना है, y इक्वल्स टू 1, ये जो लाइन होगी बेसिकली हमारे पास कितनी हो जाएगी, y इक्वल्स टू 1 की लाइन हो जाएगी। दिस इज y इक्वल्स टू 1,
तो हमारे पास जो एक्सिस आएगा वो ये आ जाएगी, एक्स एक्सिस। तो बेसिकली क्या हो गया, हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बना। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,1। तो नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का पावर 2/3। ये जो ग्राफ अभी बना है हमारे पास, ये ग्राफ हो जाएगा किसका, y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का पावर 2/3 ग्राफ बन गया। सो वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा -1,0 और ये हो जाएगा 1,0। तो हमारा जो इंटरवल दिया है -1 से लेके +1, -1 से +1 के बीच में, मतलब व्हाट द जो हमें कंसिडर करना है इस क्वेश्चन में, वो हमें ये वाला पोर्शन कंसिडर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक पॉइंट 0 पे हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन। रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है एक शार्प पॉइंट आ रहा है बेसिकली, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सो वी कैन नॉट अप्लाई एलएमवीटी ऑन दिस फंक्शन। हमारा कंटिन्यूअस तो है, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equals to 0. So we can't apply LMVT. अगर हम चाहें तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग f dash x फ्रॉम दिस इक्वेशन। हम यहाँ पे f dash x निकालें, हमने ग्राफ का अप्रोच देखा है, सो दैट कि हमें क्लियर हो जाए क्यों डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है x इक्वल टू 0 पे। जस्ट अ रफ स्केच, और ग्राफ कुछ इसी तरीके से बनेगा इसका, y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का पावर 2/3। 0 पे क्या होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, दैट्स वाई वी कांट अप्लाई एलएमवीटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जरूरी नहीं है कि सारे फंक्शन पे हम एलएमवीटी अप्लाई कर पाएंगे। कंडीशन इज कि हम चेक करेंगे फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए से बी, इट शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, एंड एफ ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो एफ ऑफ बी के बराबर नहीं होगी। इफ दिस 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन ओनली वी कैन अप्लाई एलएमवीटी। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स another questions which is asked in JEE Mains. So our next question is going to be from previous year questions. So let's see our second question based on LMVT, which has already been asked in JEE Mains 2020. So our question is, the value of C in Lagrange's mean value theorem for the function f of x is equals to x cube minus 4x square plus 8x plus 11 when x belongs to 0 से 1 is। तो हमें पूछा है कि हमें फाइंड करना है C की वैल्यू by applying LMVT on the given function in the given interval. So very simple, we have already seen previous problem based on this type of question. हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है, फंक्शन की वैल्यू दी हुई है f of x is equals to x cube minus 4x square plus 8x plus 11 and x belongs to 0 से लेके 1 तक। Very clearly we know this is a cubic polynomial where 0 से 1 के बीच में ये हमेशा कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो कंटिन्यूअस तो है हमारे पास, डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से एफ ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी 11 एंड एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 प्लस 11 दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 11 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 19 दैट इज इक्वल्स टू 16। तो हमारे पास एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 16। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो हमारे पास बाय एलएमवीटी क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई एलएमवीटी, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो स्लोप की वैल्यू होगी वो बराबर होगी किसी एक पॉइंट सी पे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। तो 16 माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 11। 16 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ डैश सी की वैल्यू ये आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 5। अब हम क्या करेंगे, इस गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और उसको इक्वेट करेंगे 5 के, सो एज टू गेट द वैल्यू ऑफ सी। तो हमारे पास एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8। नाउ व्हाट वी विल डू, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इक्वल्स टू 5। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। बाय अप्लाइंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला वी कैन बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4a, यहाँ से हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2a, 2 into 3। So from here we can calculate the value of x and that will be the value of c if it lies inside the range 0 to 1.
तो यहाँ से हमारे पास एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस रूट ओवर 64 माइनस 36, 64 माइनस 36 दैट इज 14 माइनस 6 8, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा 28। तो बेसिकली हो जाएगा हमारे पास रूट ओवर 28 डिवाइडेड बाय 6 एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज 8 प्लस माइनस 4 इंटू 7 दैट इज 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई 6। अगर हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई 3। So from here we got two answer. X can be equals to 4 plus root 7 by 3 or 4 minus root 7 by 3. I think both the options are not present. Okay. So we need to check जो हमारा x की जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए basically. So if you will go with this answer, it is greater than 1. So it is not our feasible answer. It should be the case because it is between 0 से 1. ये 0 से 1 के बीच में अलाई कर रहा है, सो दैट्स वाई वी विल गो विद दिस आंसर 4 माइनस रूट 7 बाई 3। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे पास ये हमारे इंटरवल गिवन इंटरवल जो है 0 से 1 के बीच में नहीं आ रहा है बिकॉज इट इज एक्सीडिंग द इंटरवल, दैट्स वाई इट इज नॉट आवर फिजिबल आंसर। सो इन दिस वे वी नीड टू प्रोसीड आवर एलएमवीटी प्रॉब्लम्स वेयर इन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल वेरीफाई क्या ये इस पर हम एलएमवीटी अप्लाई कर सकते हैं, बट इन दिस क्वेश्चन इट हैज ऑलरेडी मेंशन्ड दैट कि हम यहाँ एलएमवीटी अप्लाई करेंगे। ऑल्सो इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. So we have calculated the value of f dash c by LMVT formula, that is f dash c equals to f of b minus f of a divided by b minus a. तो वहाँ से हमारे पास f dash c की वैल्यू आ गई थी 5. नाउ हमारे पास जो एक्चुअल फंक्शन है उसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया एंड वी हैव इक्वेटेड दैट वैल्यू टू 5. नाउ फ्रॉम हियर वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ x. और जो यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है हमारे पास x की, इसमें से एक फिजिबल होगा और एक नॉट फिजिबल बिकॉज इट शुड बी लाइंग बिटवीन 0 से 1. इन considering that point into consideration, we got 4 minus root 7 upon 3 is our final answer. So let's move towards our next question, that is question number 3 based on LMVT. Our question is, let f be any function continuous on closed interval a to b and twice differentiable on open interval a से b. If for all x belongs to a to b, f dash x is greater than 0 and f double dash x is less than 0. These 2 points are important. Then for any c belongs to a से b, f of c minus f of a upon f of b minus f of c is greater than. We have this much options. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंटिन्यूअस भी है, डबल ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे हम क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं उसके बारे में एक बार हम लिख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. इट इम्प्लाइज कि जो हमारा फंक्शन होगा जो एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. सिमिलरली हमें सेकेंड ऑप्शन दिया है, कंडीशन दिया है एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0. इट इम्प्लाइज कि हमारा जो एफ डैश एक्स जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है. तो हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन आ गए अभी तक. और हमें दिया है सी बिलोंग्स टू ए से बी. सो बाय रीडिंग द क्वेश्चन इट इज क्लियर टू अस दैट वी नीड टू अप्लाई एलएमवीटी ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए से बी एंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए से बी. Also we have been given interval, so it is clearly mentioned that we need to apply LMVT. So from here we can identify how to apply LMVT. Now let's see how we will proceed with this question. So let's say this is x-axis, this is y-axis, और अगर हमारे पास फंक्शन जो है let's say this is x equals to a और ये हमारे पास है x equals to b. a से b में हमारा फंक्शन कैसा हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन fx. सो अगर एक रफ स्केच बनाते हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई, अगर लेट से एक फंक्शन हमारा इस तरीके से बन रहा है जो कि इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये हमारा लेट से एफ ऑफ एक्स है. तो हम एफ डैश एक्स के लिए भी एक प्लॉट कर लेते हैं डायग्राम, रफ स्केच. तो हमारा एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है बेसिकली. तो अगर हम एक्स इक्वल्स टू ए की ये लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हम ड्रॉ करेंगे एक्स इक्वल्स टू बी की लाइन, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बेसिकली एफ डैश एक्स लिए मैं बना रहा हूँ जस्ट अ रफ स्केच. ये बेसिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा और ये इंक्रीजिंग है. ये है y इक्वल्स टू एफ डैश एक्स का ग्राफ और ये है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ. एफ ऑफ एक्स ऐसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमें यहाँ से पता चला. और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. तो हमने ये प्लॉट कर लिया. अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए से सी बिलोंग्स टू ए से बी. लेट से हमारे पास जो पॉइंट सी है वो कुछ यहाँ पे आ रहा है, एक्स इक्वल्स टू सी. तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास एलएमवीटी में क्या है, फ्रीडम है कि एफ ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी.
तो अगर हमारे पास अगर दो एंड पॉइंट्स पे वैल्यू इक्वल नहीं है फंक्शन की, तो हम क्या करके एलएमवीटी अलग अलग पार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस केस हम क्या करेंगे, ए से लेके सी पे एलएमवीटी अप्लाई कर लेंगे। और अगर हम ऑप्शन में क्वेश्चन देखें तो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, तो वहां से भी हमें क्लियर हो रहा है कि हमें एलएमवीटी जो है पार्ट वाइज अप्लाई करना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, ए और सी के बीच में अप्लाई करेंगे एंड देन वी विल अप्लाई एलएमवीटी इन बिटवीन सी एंड बी। सो लेट्स सी अप्लाई एलएमवीटी, अप्लाई एलएमवीटी इन द इंटरवल इन एक्स बिलोंग्स टू ए से लेके बी सी तक। तो ए से लेके सी तक फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, वैल्यू इज नॉट इक्वल्स। ठीक है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश सी मतलब इस ए और सी के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा, लेट से यहाँ पे उसको हम लोग बोल देते हैं C1। ए और सी के बीच में कोई ऐसा पॉइंट आएगा C1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एफ डैश C1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई सी माइनस ए। तो ये हो गया हमारे पास एफ डैश C1 की वैल्यू। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अप्लाई एलएमवीटी इन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी से लेके बी तक। हम क्या करेंगे, सी और बी में अप्लाई करेंगे एलएमवीटी इस फंक्शन पे। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास एक ऐसा वैल्यू आएगा सी डैश मतलब सी, इसको हम लोग C2 बोल देते हैं, जो कि सी और बी के बीच में आ रहा होगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एफ डैश C2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एंड पॉइंट्स की वैल्यू है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी। एफ डैश C1 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, एफ डैश C2 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। एंड अगर हम लेट से एफ डैश C1 और एफ डैश C2 में अगर हमें कंपेयर करना हो, तो हमने ग्राफ बनाया हुआ है एफ डैश एक्स का। तो लेट से हमारे पास C1 यहाँ पे आ रहा है और हमारे पास C2 कुछ यहाँ पे आ रहा है। अगर हम वैल्यू देखेंगे तो हमारा एफ डैश C1 की जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन एफ डैश C2 की वैल्यू आ रही है। एफ डैश एक्स का ग्राफ है बेसिकली, जो कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। सिंस इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इट मीन्स कि अगर C1 बड़ा है, सॉरी C1 इज लेस देन C2, इट मीन्स जब फंक्शन की वैल्यू की बात करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा। तो एफ ऑफ C1 विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ C2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड, फ्रॉम हियर वी कैन से, from the graph we have already seen that f dash C1 is greater than f dash C2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये इनइक्वालिटी हमारा होल्ड कर रही है क्योंकि फंक्शन जो है f dash x वो डिक्रीजिंग फंक्शन है एंड C1 is less than C2, that's why f dash C1 is greater than f dash C2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू डाल देंगे हम लोग। तो यहाँ हो जाएगा f of C माइनस f of A डिवाइडेड बाई C माइनस A इज ग्रेटर देन f dash C2 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा f of B माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को नीचे ले आएंगे। ऑल्सो हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमें पता है कि पॉइंट जो हमने बनाया था अभी कुछ इस तरीके से था। हमारा पॉइंट एक्स की वैल्यू ए यहाँ पे है, एक्स की वैल्यू बी यहाँ पे है, सी हमारा इन बिटवीन है ए और बी के बीच में। तो अगर हम बात करें एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। एफ ऑफ सी जो है बड़ा होगा एफ ऑफ ए से, मतलब ये जो पूरा टर्म है ये पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर हम बात करें एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि एफ ऑफ बी जो है बड़ा है एफ ऑफ सी से। तो ये टर्म भी पॉजिटिव और ये टर्म भी पॉजिटिव। तो जब हम पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव करेंगे तो हमें इनइक्वालिटी की साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी ग्रेटर देन सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। हमने ये भी देख लिया कि हम जब इसको डिवाइड करें तो हमारा इनइक्वालिटी साइन क्यों चेंज नहीं हो रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये जो वैल्यू है ये भी पॉजिटिव है और ये वाला भी वैल्यू पॉजिटिव है। फ्रॉम हियर वी गॉट आंसर कि एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी, दैट इज दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था हमारा जो जेईई मेंस में आया हुआ था ऑलरेडी। तो हमने क्या किया इस पे, बेसिकली हमें इस पे क्या करना था, हमें एलएमवीटी अप्लाई करना था एंड दो अलग अलग इंटरवल में, राइट। बेस्ड ऑन द क्वेश्चन कि हमें जिसकी वैल्यू पूछा है हमने उसको इस तरीके से अरेंज किया कि एफ डैश, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा जो एफ डैश एक्स फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा।
So we have taken the advantage of that useful information and we have concluded कि f dash c1 की जो वैल्यू आएगी वो f dash c2 से बड़ा होगा. This is our important point in this question. From here itself we have derived the final answer, that is this one. So this was a good question. You should re-attempt it once by yourself so as to make it more clear. So let's move towards next question. Our question is, let f be a twice differentiable function on interval 1 to 6 if f of 2 equals to 8 and f dash 2 equals to 5. Also f dash x greater than equals to 1 and f double dash x greater than equals to 4 for all x belongs to open interval 1 to 6. Then we have the four options. F of 5 plus f dash 5 greater than equals to 28. Basically we need to comment on f of 5, f dash 5 and f double dash 5. This has already been asked in JEE Mains 2020. So now let's see how to proceed on this question. You just try by yourself once without saying the solution. Suppose that it will be very much clear to you. तो अगर हम इसमें बात करेंगे सॉल्यूशन की तो हमारे पास जो यूजफुल इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं. f of 2 इक्वल्स टू दिया हुआ है 8, f dash 2 इक्वल्स टू 5 एंड f dash x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, f डबल dash x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4. ठीक है, 1 से लेके 6 का इंटरवल दिया हुआ है हमारे पास. अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास 5, f of 5 और f dash 5 पे कमेंट करना है. तो फ्रॉम देयर वी नीड टू, इट इज़ क्लियर दैट कि हमें जो अप्लाई करना है एलिमेटिव, अगर हम बात करें तो ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है. इसका मतलब कंटिन्यूअस भी होगा ऑलरेडी. इट मीन्स कि एलिमेटिव का फर्स्ट और सेकंड कंडीशन तो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है. नाउ वी नीड टू थिंक कि हमें किस इंटरवल में अप्लाई करना है एलिमेटिव. तो लेट्स से अगर हमारे पास 1 से लेकर 6 के बीच में अगर हमें दिया हुआ है ग्राफ फंक्शन कि यहाँ पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो f of 2 की वैल्यू दी है हमें बेसिकली यहाँ पे f of 2 और हमें f of 5 की वैल्यू हमें यहाँ पे दिख रहा है. तो बेसिकली हमें 2 और 5 के बीच में जो हमारा इंटरवल है उस पर हमें अप्लाई करना चाहिए अपना जो एलएमवीटी है बेसिकली. तो हम क्या करेंगे, अप्लाई एलएमवीटी. ग्राफ इज जस्ट टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है ये. अप्लाई एलएमवीटी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, क्या करेंगे 2 और 5 के बीच में अप्लाई करेंगे इसको फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2 से लेके 5 तक. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स, लेट्स सी एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2. और अगर हम यहाँ से बात करेंगे एफ डैश सी की, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एफ डैश एक्स हमेशा क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा. तो एफ ऑफ 5 की वैल्यू हमें दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है. फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है 8, यहाँ हो जाएगा -8/3 इज इक्वल्स टू एफ डैश सी. सो इट इज़ क्लियर कि यहाँ पे हम इंडिविजुअली पॉइंट सी पे बात कर रहे हैं, बट इट इज़ मेंशन कि एफ डैश एक्स जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा एट एनी पॉइंट एक्स बिलोंगिंग टू द इंटरवल 1 to लेके 6 तक. तो इसका मतलब एफ डैश सी जो होगा ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा. इसका मतलब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा बेसिकली एफ ऑफ 5 -8/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि जो राइट हैंड साइड में वो हमेशा क्या हो रहा है 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है. तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ 5 -8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ 5 -8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, एफ ऑफ 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11. तो हमने क्या किया, एफ ऑफ 5 पे तो कमेंट कर लिया ऑलरेडी. नाउ इट्स रिमेनिंग कि हमें एफ डैश 5 पे भी कमेंट करना है, प्रोवाइडेड अगर हमें एफ डबल डैश 5 पे भी अगर हम कमेंट कर पाएँ तो लेट्स सी. अब हम क्या करना है, एफ डैश 5 पे कमेंट करना है हमें बेसिकली, एफ डैश 5 पे, यहाँ पे एफ डैश 5 है. तो हम क्या करेंगे, एफ डैश 5 पे बोला है और ये भी दिया है कि हमें सेकंड डेरिवेटिव जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है. तो अभी हमने जो एलएमवीटी अप्लाई किया था वो क्या किस पे अप्लाई किया था, एफ एक्स पे अप्लाई किया था, फंक्शन एफ एक्स पे. क्योंकि अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें एफ डैश 5 में भी कमेंट करना है कुछ वैल्यू और हमारा सेकेंडरी ट्वाइस डिफरेंशिएबल भी है फंक्शन. इट मीन्स कि हम एफ डैश एक्स पे भी एलएमवीटी अप्लाई कर सकते हैं. अगर हम एफ डैश एक्स की बात करेंगे तो हम इट शुड बी क्लियर कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो. इट इज गिवन कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वी कैन गो विद अप्लाई एलएमवीटी ऑन एफ डैश एक्स ऑल्सो. हम क्या करेंगे, अब हमें एफ ऑफ 5 पे कंडीशन मिल गया है. सो वी हैव ऑलरेडी गॉट द कंडीशन फॉर एफ ऑफ 5. हम उसको नोट डाउन करके रखेंगे एंड वी विल प्रोसीड द क्वेश्चन फॉर फाइंडिंग एफ डैश 5.
तो हमें एक कंडीशन मिल गया कि एफ ऑफ 5 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 आ रही है। नाउ लेट्स अप्लाई LMVT ऑन एफ डैश एक्स। अभी हमने क्या किया था, एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई किया था, नाउ हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स पे अप्लाई करेंगे। अगर हमारा फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन एफ डैश एक्स है तो हम जो कैलकुलेट करते हैं बाय LMVT एफ डैश सी। अगर ये फंक्शन है तो हमारा जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन आता है बेसिकली, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश सी इज इक्वल्स टू एफ डैश बी। एफ डैश बी कितना हो जाएगा 5 इन द फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2 से लेके 5। हमारा इंटरवल अभी भी 2 से लेके 5 के बीच में ही होगा। तो हमारे लिए क्या हो गया, ओरिजिनल फंक्शन हो गया एफ डैश एक्स इज हमारा ओरिजिनल फंक्शन। तो एफ डैश 5 माइनस एफ डैश 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एफ डैश 5 की वैल्यू वी डोंट नो, माइनस एफ डैश 2 की वैल्यू में दिया हुआ है दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 3। नाउ वी नो कि एफ डबल डैश सी जो है वो क्या है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ रहा है। इट मीन्स कि ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश 5 minus 5 greater than equals to 12. From here we can get f dash 5 is greater than equals to 17. तो हमारे पास क्या आ गया, f of 5 is greater than equals to 11, f dash 5 greater than equal to 17. Let's say this is equation number 1 and this is equation number 2. So we can write from equation 1 and equation 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा f of 5 plus f dash 5 is greater than equals to 11 plus 17, that is f of 5 plus f dash 5 greater than equals to 28. This will be our final answer. So Agra is the right answer. First option is the right because f of 5 plus f dash 5 is greater than equals to 28. हमने क्या किया, इसमें क्या अलग था इस क्वेश्चन में, द मेन थिंग दैट इज डिफरेंट इज हम इसमें क्या कर रहे हैं, LMVT अप्लाई कर रहे हैं f dash x पे, राइट। हमने इसके पहले जो फंक्शन क्वेश्चन देखे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, LMVT अप्लाई कर रहे थे फंक्शन f(x) पे। इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू अप्लाई LMVT ऑन f of x एज वेल एज ऑन f dash x। तो जब हम f dash x पे अप्लाई करेंगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आती है f dash c, वो जाएगा f डबल डैश c, क्योंकि ऑलरेडी f सिंगल डेरिवेटिव ऑलरेडी पड़ा हुआ है फंक्शन में ही। तो आफ्टर डेरिवेशन वंस अगेन वी विल गेटिंग f डबल डैश c इक्वल्स टू f of b माइनस f of a। इस केस में फंक्शन f dash x है तो f dash b minus f dash a upon b minus a. Similarly, we have calculated the condition for f dash 5 and it is greater than equal to 17. And earlier we have calculated that f of 5 is greater than equal to 11. जब हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो we can combinedly get the equation that f of 5 plus f dash 5 is greater than equals to 28. That is our first option is correct. So as of now we have gone through the questions based on LMVT. तो हमने देखा कि वहाँ पे f dash c equals to f of b minus f of a upon b minus a को हम कैसे क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करते हैं, एंड वी हैव गॉन थ्रू मल्टीपल वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस। सो नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। सो लेट्स से अगर हमारे पास कोई पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मूवमेंट करता है। अगर हम काइनेमेटिक्स से बात करें फिजिक्स में, तो कोई एक पार्टिकल है जो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करता है थ्रू आउट द जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो लेट्स से इसका कुछ स्टार्टिंग वेलोसिटी लेट्स से होता है 5 किलोमीटर पर आवर, लेट्स से बाद में चल के उसकी वेलोसिटी 7 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। इस तरीके से मल्टीपल वेलोसिटीज होती है उसकी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी होती है, और किसी इंस्टेंट पे लेट्स से उसका वेलोसिटी होता है कुछ 5.8 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से थ्रू आउट द जर्नी वाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज हो रही है उसकी वेलोसिटी। एंड लेट्स से आफ्टर कैलकुलेशंस एंड वी फाउंड दैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इक्वल्स टू लेट्स से 6 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम बात करेंगे जो पार्टिकल था, जो हमारे पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो थ्रू आउट द जर्नी उसने मल्टीपल वेलोसिटी अटेन किया, और बाद में हमने कैलकुलेट किया उसकी सारी वेलोसिटीज का एवरेज निकाल के, तो वी फाउंड दैट कि 6 किलोमीटर पर आवर इज एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा मीन वैल्यू थ्योरम होता है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इट सजेस्ट कि मीन वैल्यू थ्योरम इट सजेस्ट कि जो हमारा एवरेज वेलोसिटी आया है 6 किलोमीटर पर आवर उस पार्टिकल का,
ये 6 किलोमीटर पर आवर उस जो पार्टिकल है जब वाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ऐसा जरूर कोई ना कोई इंस्टेंट आया होगा, एटलीस्ट एक इंस्टेंट जरूर आया होगा जिस पॉइंट पे, लेट्स से इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे उस पार्टिकल का वेलोसिटी इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर रही होगी। इट मे बी मोर देन वन टाइम ऐसा इंस्टेंट आया हो, बट एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पे उस पार्टिकल का वेलोसिटी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल थ्रू आउट द जर्नी। दिस इज नोन एज मीन वैल्यू थ्योरम। तो हमने मीन वैल्यू थ्योरम का सारा थ्योरी पार्ट एज वेल एज न्यूमेरिकल पार्ट देख लिया, और हम उसका फिर अभी इसका जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मीनिंग होती है मीन वैल्यू थ्योरम का, जो वर्ड है मीन, एक्चुअली इसका मतलब होता है एवरेज। तो इसका हमने एवरेज या फिर मीन वर्ड टर्म ही क्यों चूज किया वाइल डिफाइनिंग द थ्योरम फॉर मीन वैल्यू थ्योरम। तो जो मीन वर्ड यूज हो रहा है मीन वैल्यू थ्योरम में, इसका एक्चुअल क्या मीनिंग है वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब भी कोई पार्टिकल वाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इट अटेन्स डिफरेंट वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी, एंड फाइनली वी गॉट द एवरेज वेलोसिटी एज 6 किलोमीटर पर आवर। लेट्स एज्यूम इट इज नॉट द एक्चुअल कैलकुलेशन। तो हमने पाया कि 6 किलोमीटर पर आवर एक एक्चुअल वेलोसिटी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी है उसकी। तो इट मीन्स कि पार्टिकल की 6 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी जो होगी किसी न किसी इंस्टेंट पे जरूर इक्वल रही होगी। इट मे बी मोर देन वन टाइम। अगर किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब कि ये इक्वेशन जो है होल्ड करेगा एटलीस्ट एक पॉइंट पे, एटलीस्ट एट वन पॉइंट। तो ये था हमारा मीन वैल्यू थ्योरम में जो हम टर्म यूज करते हैं मीन, इसका क्या एक्चुअल मीनिंग है वो हम यहां से समझ पा रहे हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें अगर, तो लेट्स सी इफ f इज अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a से b सच दैट, तीन कंडीशन क्या है हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन इज f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b, दिस वाज इन LMVT ऑल्सो। f is differentiable in open interval a to b, this was also in LMVT. Now the third condition which is different from LMVT is function की वैल्यू जो होगी एंड पॉइंट्स पे वो इक्वल होनी चाहिए, that is f of a equals to f of b. Then there exist, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, then there exists at least one c belonging to a to b such that f dash c equals to 0. अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है, these two conditions are from LMVT itself. The third condition is different in this case, that is f of a की वैल्यू f of b के बराबर होनी चाहिए। अगर हम ग्राफ से इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हमें we can observe कि अगर ये x एक्सिस है and this is y एक्सिस, let's say this is x equals to a and this is x equals to b, तो बेसिकली a और b इंटरवल के बीच में हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो हमारा जो कंडीशन है कि f of a की जो वैल्यू होगी वो f of b के बराबर होगी। इट मीन्स कि अगर ये पॉइंट जो होगा हमारा, ये हो जाएगा a कॉमा एफ ऑफ ए, और ये हो जाएगा हमारा b कॉमा एफ ऑफ b, बट यहाँ पे f ऑफ a की वैल्यू कितना है, f ऑफ b के बराबर है, राइट। सो अगर ये कंडीशन होगा हमारे पास, तो अगर हमारे पास लेट्स से कोई ग्राफ बनाते हैं हम किसी भी तरीके से, बट द कंडीशन इट शुड बी लाइंग हियर। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा पॉइंट a से स्टार्ट हुआ ग्राफ और पॉइंट b पे गया, वो किसी भी तरीके से जा सकता है, लेट्स से इस तरीके से गया या फिर ऐसे चला जाए, बट द कंडीशन इज कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए। दो मैंने फंक्शन के ग्राफ बना दिया अलग अलग। सो सिमिलर टू LMVT, तो जो यहाँ पे स्लोप आ रहा है, अब a स्लोप ऑफ a b इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ a b इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करें f ऑफ b माइनस f ऑफ a लगाएंगे भी, तो लेट्स सी ये हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a। सिंस बोथ द वैल्यूज आर इक्वल, दिस मीन्स इट इज इक्वल्स टू 0। तो सिमिलरली अगर हमारा जो टेंजेंट जो लाइन बन रही है ए बी लाइन, इसका जो स्लोप आ रहा है, सिमिलर टू पैरेलल टू दिस ए बी लाइन, देयर इज एटलीस्ट वन लाइन। फॉर एग्जांपल इन दिस केस वी कैन ड्रॉ दिस लाइन एज वेल एज दिस लाइन, और ये भी बना सकते हैं हम लोग। मतलब तीन ऐसे ग्राफ बन रहे हैं जो फंक्शन 1 के ऊपर है। अगर हम फंक्शन 2 की बात करें तो एटलीस्ट यहाँ पे एक लाइन बन रही है जिसका स्लोप 0 होगा, तो इस पॉइंट पे c आ रहा है। तो अगर हम सिर्फ ऊपर वाले फंक्शन की बात करें तो लेट्स से दिस इज c1 एंड दिस इज c2 एंड दिस इज c3। मतलब हमारे पास इस ग्राफ में तीन ऐसे पॉइंट आ रहे हैं जिसका स्लोप 0 के बराबर आ रहा है। तो हमारा रोल्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन हो जो a से b में डिफाइंड हो, सच दैट कि क्लोज इंटरवल a b में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एंड
एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू ए टू बी, ए और बी के बीच में एक ऐसा सी जरूर आएगा, एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जिस पे एफ डैश सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब जो इस लाइन का स्लोप है उसके बराबर आ जाएगा, और मतलब ए बी जो लाइन है इसके पैरेलल हम टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे इन द गिवन ग्राफ। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम नाउ वी हैव गॉन थ्रू द थ्योरी पार्ट एंड द रिजल्ट दैट इज एफ डैश सी क्या हो जाएगी 0। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विथ सम ऑफ द क्वेश्चंस कि हम कैसे वेरीफाई करेंगे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है, एंड वी विल टेक मेनी मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस रोल्स थ्योरम टॉपिक। सो लेट्स टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन रोल्स थ्योरम, वेरी बेसिक। वेरीफाई इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल और नॉट, इफ यस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी का क्या मतलब है कि ए और बी के बीच में जो ऐसा पॉइंट सी आएगा जिस पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, हमें वो पॉइंट से कैलकुलेट करना है। लाइकवाइज वी हैव कैलकुलेटेड इन LMVT प्रॉब्लम आल्सो। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट सॉल्यूशन। तो हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 एंड एक्स बिलोंग्स टू -3 to 0। तो हमें कंटिन्यूअस तो होगा ऑलरेडी, क्योंकि ये फंक्शन हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल -3 से 0। कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है। ऑल्सो एफ ऑफ -3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। एफ ऑफ -3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, -3 इंटू -3 प्लस 3 इंटू ई रेज़ टू द पावर -3/2 दैट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा हमारा। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर लेंगे एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 इंटू ई रेज़ टू द पावर 0/2 दैट इज इक्वल्स टू 0। मतलब एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी आ रहा है। इट मीन्स हमारा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, एंड फंक्शन की जो एंड पॉइंट्स पे जो वैल्यू है एफ ऑफ -3 और 0 पे वो इक्वल टू 0 आ रही है, दैट इज इक्वल। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। नाउ इट्स टर्न टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन जो हमारा एक्चुअल फंक्शन है इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, एंड वी विल इक्वेट दिस डिफरेंशिएशन वैल्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। तो लेट्स से इट इज फर्स्ट फंक्शन एंड इज सेकेंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो इसका हो जाएगा ई का पावर -x/2 इंटू -1/2 प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिख लेंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ से आएगा 2x + 3 इज इक्वल्स टू 0 करना है हमें, सो एज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। जिस वैल्यू पे 0 आएगा हमारा वही सी की वैल्यू हो जाएगी बेसिकली। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, और तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, ई के पावर -x/2 कॉमन हो जाएगा हमारे पास, ई के पावर -x/2। तो यहाँ से आएगा x² + 3x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन यहाँ लगा लेते हैं। तो यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस में 2x + 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। हमारा एक्सपोनेंशियल की जो फंक्शन होती है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। ई के पावर अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाएं, ई के पावर एक्स ग्राफ ये है, तो नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। तो यहाँ से हमें 0 कभी भी नहीं मिलेगा इस फंक्शन से, तो मतलब हमें यहाँ से 0 मिलने वाला है। तो हम उसको इक्वेट कर लेंगे 0 के इक्वल। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² + 3x अपॉन 2 - 2x - 3 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा हमारे पास x² + 3x - 4x - 6 इक्वल्स टू 0, x² - x - 6 equals to 0, and this we can write it as x - 3 into x + 2 equals to 0. From here we can get x equals to 3 and x equals to -2. हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है -3 से 0। -3 से 0 के बीच में हमारे पास कौन सा इंटरवल आ जाएगा, -2 आ जाएगा। x equals to 3 will be discarded because -3 से 0 के बीच में -2 आ जाएगा हमारे पास, एट 3 यहाँ पे आएगा। तो बेसिकली हमें इस इंटरवल के बीच में ही वैल्यू चाहिए जो कि हमारा -2 आ रहा है। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, x equals to -2। मतलब c की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, c is equals to -2।
इस पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन की जो डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी, फंक्शन के डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। सो इट वॉज वेरी बेसिक क्वेश्चन। हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि रोल्स थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हम वही हमारे जो 3 कंडीशन है वही सेटिस्फाई कराएंगे हम लोग। सबसे पहले कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं ओपन इंटरवल ए से बी में। इफ बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड वी विल मूव फॉर द थर्ड कंडीशन, दैट इज फंक्शन की जो वैल्यू होगी एंड पॉइंट पे वो इक्वल आनी चाहिए। सो वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ f of -3 दैट इज इक्वल्स टू 0। ऑल्सो वी हैव सीन दैट f of 0 इज ऑल्सो 0। इट मीन्स कि हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया जो हमारा एक्चुअल फंक्शन था। हमारा एक्चुअल फंक्शन था f of x वैल्यू ये, तो अब वी हैव डिफरेंशिएटेड एंड वी गॉट दिस रिजल्ट। हमें पता है कि यहाँ से 0 नहीं हो पाएगा कभी भी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर टचेस x एक्सिस, तो हमें यहाँ से 0 मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। फ्रॉम हियर वी गॉट x इक्वल्स टू -2 एज वेल एज x इक्वल्स टू 3। इसका मतलब कि हमें -2 हमारा राइट आंसर होगा बिकॉज इट कम्स अंडर द इंटरवल -3 से 0। नाउ लेट्स सी सेकंड एग्जांपल। यू आल्सो ट्राई बाय योरसेल्फ सो दैट कि आपको भी क्लैरिटी मिलता रहे कि कैसे अप्रोच कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन पे। सो हमारे पास f(x) दिया हुआ है sin x अपॉन e रेज़ टू द पावर x। नाउ वी नीड टू इंटरवल दिया है 0 से पाई के बीच में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है या नहीं वो चेक करेंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 2 पे बात करें अगर हम, तो हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों, ये 0 से पाई के बीच में sin x अपॉन e का पावर x ट्रिग्नोमेट्रिक अपॉन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है। थर्ड पॉइंट की बात करें अगर हम लोग, तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से f ऑफ 0 की हो जाएगी sin 0 अपॉन e का पावर 0 दैट इज 0 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। और हम बात करेंगे f ऑफ पाई की, तो sin पाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, 0 अपॉन e टू द पावर पाई दैट इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा एंड पॉइंट्स पे जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की वो इक्वल आ रही है। इट मीन्स कि हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज वी हैव सीन कि हमारा ऑल द 3 कंडीशंस आर गेटिंग सेटिस्फाइड। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो क्या करेंगे, इसमें रोल्स थ्योरम हमारा अप्लाई हो रहा है, अप्लाई रोल्स थ्योरम फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई, और हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ये। तो हम क्या करेंगे, f' निकाल लेंगे यहाँ से। तो f' इज इक्वल्स टू, डिवीजन रूल अप्लाई कर लेंगे, e के पावर x का होल स्क्वायर e रेज़ टू द पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास cos x माइनस, फॉर न्यूमरेटर का फंक्शन लिख लेंगे sin x डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x, ये हो जाएगा e का पावर x। इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे बिकॉज रोल्स थ्योरम में क्या होता है, f' की वैल्यू कितनी आती है 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा e रेज़ टू द पावर x, हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x माइनस sin x अपॉन e रेज़ टू द पावर x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये टर्म कट जाएगा पूरा, तो यहाँ से बचेगा cos x माइनस sin x इज इक्वल्स टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं इसको tan x इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से x इक्वल्स टू π/4 विच लाइज बिटवीन 0 से पाई, tan x इक्वल टू 1 दैट इज 0 दैट इज π/4। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा बेसिकली। हमने क्या किया यहाँ पे, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है क्योंकि हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक अपॉन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल रहेगा। तो इसके अलावा हमने क्या किया, f ऑफ a की वैल्यू मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू कैलकुलेट किया, f ऑफ पाई की वैल्यू कैलकुलेट किया, और हमने देखा कि दोनों वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है, दैट मीन्स कि वी कैन अप्लाई रोल्स थ्योरम। तो हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमने इसको इक्वल टू 0 कर दिया। तो जो हमारी x की वैल्यू आ रही है वही हमारी c की वैल्यू हो जाएगी बेसिकली। तो c इक्वल्स टू π/4 इज द राइट आंसर। π/4 पे क्या होगा हमारे अगर हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एट द पॉइंट π/4 पे, तो उसकी जो स्लोप आएगी वो कितना आएगा, 0 आएगा। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग। So now let's move towards another questions which has already been asked in JEE Mains and JEE Advanced as well. Now let's proceed with another problem based on Rolle's theorem. The question is, if C is a point at which Rolle's theorem holds for the function f of x equals to log of x square plus alpha upon 7x base e in the interval closed interval 3 to 4 where alpha belongs to R, that is real number, then f double dash c is equal to question mark. We need to find the value of f double dash c प्रोवाइडेड रोल्स थ्योरम इस पे होल्ड कर रहा है, मैं क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। सो हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है जिस पे रोल्स थ्योरम वैलिड है। सो क्वेश्चन इज f ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग बेस में e x स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन 7x। अब इस पे रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है,
इन द इंटरवल 3 से लेके 4 तक। अगर इस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है इसका मतलब कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है इन द इंटरवल 3 से 4। ऑल्सो इट इज मेंशन कि एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू एफ ऑफ 4, क्योंकि हमें पता है रोल्स थ्योरम का थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू एफ ऑफ 4। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट log base e x square that is 9 3 square that is 9 plus alpha upon 21 is equals to log of base e, we will put the value of x equal to 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 plus alpha upon 28. Since base is equal, we can equate this value, that is 9 plus alpha upon 21 equals to 16 plus alpha upon 28. 7 3 are 21, 7 4 are 28. From here we can calculate 9 4 are 36 plus 4 alpha is equals to 16 3 are 48 plus 3 alpha, and from here we can get alpha is equals to 48 minus 36, that is 12. तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 12। नाउ आवर फंक्शन एफ एक्स कैन बी रीरिटेन एज एक्स स्क्वायर प्लस 12 डिवाइडेड बाई 7x, ये लॉग में बेसिकली पूरा वैल्यू लॉग बेस ई, तो ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश सी। तो अगर हमें एफ डैश सी निकालना होता तो वो तो जीरो होता हमेशा, इस केस में एफ डैश सी की वैल्यू जीरो होगी। सी इज अ पॉइंट जहाँ पर रोल्स थ्योरम होल्ड कर रहा है, करेक्ट। तो हमें एफ डबल डैश सी निकालना, तो हम क्या करेंगे, इसको इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। तो बेसिकली अगर हमें एफ डबल डैश सी निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम हियर वी कैन गेट, हम क्या करेंगे पहले सी की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी। सो लेट्स सी हाउ वी विल कैलकुलेट। हमें पता है कि अगर रोल्स थ्योरम होल्ड करेगा तो इसका मतलब एफ डैश सी की वैल्यू कितना जाएगी, जीरो। तो जिस पॉइंट पे डेरिवेशन जीरो आएगा इस फंक्शन का, वही पॉइंट हमारा सी पॉइंट हो जाएगा। तो लेट्स कैलकुलेट द डेरिवेशन फर्स्ट। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 12 इंटू, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, थोड़ा हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस लॉग ऑफ 7x। हम इसको डिराइव कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 2x, यहाँ हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 7x। और क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट, इसको हम इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 14x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 13x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 7x, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस लॉग ऑफ 7x, बेस में ई रहेगा, तो एफ डैश एक्स हो जाएगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2x, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 7x इंटू 7 भी आएगा यहाँ पे, इंटू फिर 7x डिफरेंशिएशन 7x से करेंगे डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 14x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 12 इंटू 7, 12 into 7, that is 84 equals to 0. From here we can calculate 7x square is equals to 84. From here x square equals to 1 2, that is 12. x स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, प्लस माइनस 2√3, ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू। बेसिकली हमारे पास ये c की वैल्यू आ गई। अब इसमें c का कौन सा वैल्यू होल्ड करेगा, लेट्स सी, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा क्योंकि सी की जो वैल्यू होनी चाहिए 3 और 4 के बीच में आना चाहिए। तो लेट्स सी यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 2√3, या फिर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो ये होगा हमारे पास सी की वैल्यू। अब हमें बताना है एफ डबल डैश सी। बेसिकली जो हमारा फंक्शन है उसको, जो हमारा एफ डैश एक्स आया है वो आया हमारा कुछ, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, बेसिकली एफ डैश एक्स वैल्यू आ गई
हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, उसमें एक्स की वैल्यू में सी, जो वैल्यू सी की बराबर है वो पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, हो जाएगा 14x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 84 डिवाइडेड बाई 7x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12। ये हमारा एफ डैश एक्स की वैल्यू है। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग यहाँ से, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इसको लिख सकते हैं 7x स्क्वायर माइनस 84, 7 भी कट जाएगा यहाँ से, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12। तो ये आ गया हमारे पास एफ डैश एक्स सिंप्लीफाइड वर्जन में। इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट फंक्शन, या फिर काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा था, 14x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 84, तो 7x स्क्वायर माइनस 84 आ गया। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा u स्क्वायर इंटू v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12। तो इसका डेरिवेशन हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस ऊपर का जो फंक्शन है न्यूमरेटर उसको लिख लेंगे हम लोग, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 12। फिर नीचे वाला जो पूरा डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो ये बेसिकली हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 12x। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस 12, 3x स्क्वायर प्लस 12। तो ये हो गया हमारे पास पूरा डिफरेंशिएशन, एफ डबल डैश एक्स वैल्यू आ गई। क्या कर सकते हैं यहाँ से, हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 आ रही है। बेसिकली हमें एक्स की वैल्यू कितना पुट करना है, सी, क्योंकि हमें एफ डबल डैश सी चाहिए, तो सी की वैल्यू है 2√3, सी स्क्वायर की वैल्यू 12 है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली एक्स स्क्वायर की वैल्यू 12 पुट कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या आता है हमारे पास। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12। ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12। तो बेसिकली क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 12 प्लस 12 माइनस 0 क्यों आ रहा है नीचे ना, सेकेंड टर्म, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर हम 12 पुट करेंगे तो 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 12, फिर से 12 प्लस 12 का होल स्क्वायर, 12 प्लस 12 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास आ जाएगा एफ डबल डैश सी इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, एक्स की जगह पे सी पुट कर दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 24 इंटू 24। तो ये वाला टर्म पूरा कट जाएगा इससे, ये हो जाएगा 1/12। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ डबल डैश सी की वैल्यू 1/12। तो थोड़ा कैलकुलेशन था इसके अंदर, तो वी शुड बी रेडी विद द कैलकुलेटिव पार्ट आल्सो इन जेईई मेंस एज वेल एज इन जेईई एडवांस प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास क्या था इसमें, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले रोल्स थ्योरम अप्लाई किया। तो रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमें पता चलता है कि एफ डैश सी की वैल्यू 0 होती है वेयर सी बिलोंग्स टू ए इन द इंटरवल ए टू बी। तो हमने सबसे पहले सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया बाय डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन। सबसे पहले हमने अल्फा की वैल्यू निकाली, अल्फा के निकालने के बाद हमने इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, वहां से हमें सी की वैल्यू मिल गई। जब हमें सी की वैल्यू मिल गई, दैट इज सी की वैल्यू आ गई 2√3 या फिर सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12। तो हमने क्या किया, जो हमारा फंक्शन एफ डैश एक्स था उसको एक बार और डिफरेंशिएट किया, उसके बाद हमने सी की वैल्यू को ये पुट कर दिया, या फिर सी स्क्वायर की वैल्यू हमने 12 पुट कर दिया टू गेट द फाइनल आंसर दैट हैज बीन आस्क्ड, दैट इज एफ डबल डैश सी। हमारा आ गया 1/12, दैट इज डायरेक्टली ऑप्शन इज राइट। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन रोल्स थ्योरम। द क्वेश्चन सेज if 2a plus 3b plus 6c equals to 0 and abc belongs to real number, then show that quadratic ax square plus bx plus c equals to 0 will have one root in 0 से 1। तो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट हैज़ बीन आस्क्ड इन IIT JEE। तो पहले हमारे पास प्रॉब्लम्स आते थे जो हमें रिटन एग्जाम होते थे हमारे IIT में, उस टाइम पे क्वेश्चन आया हुआ था। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। अगर हमें प्रूफ करना है किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में विल हैव वन रूट बिटवीन 0 से 1, लेट्स से अगर ये 0 है और ये 1 है, इसके बीच में एटलीस्ट एक रूट आ रहा हो, इसका मतलब ग्राफ क्वाड्रेटिक का कुछ इस तरीके से बन सकता है, या फिर कुछ इस तरीके पैराबोला डाउनवर्ड भी बन सकता है इस तरीके से। मतलब अगर हम सिर्फ ए पॉजिटिव की बात करें अगर,
हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, मतलब 0 और 1 से बीच में ग्राफ एक जगह कट कर रहा हो, ठीक है। इसका मतलब एफ ऑफ, अगर मैं इस पॉइंट को सी बोल देता हूँ या फिर लेट से मैं इस पॉइंट को कुछ के बोल देता हूँ, तो इसका मतलब एफ ऑफ के शुड बी इक्वल्स टू 0 टू प्रूफ कि हमारा एक रूट जो है 0 और 1 के बीच में आ रहा है। अगर हम ये प्रूफ कर पाए कि हमारा, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ऐसा एक पॉइंट के है जो कि 0 और 1 के बीच में आ रहा है, मतलब के बिलोंग्स टू 0 से 1 में आ रहा है और एफ ऑफ के की वैल्यू कितनी आ रही है 0। इसका मतलब ये दोनों अगर हम प्रूफ कर दिए, इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल हैव वन रूट इन 0 से 1। तो हमें बेसिकली यही प्रूफ करना है कि एफ ऑफ के की वैल्यू 0 हो। बट अगर हम रोल्स थ्योरम की बात करें तो रोल्स थ्योरम हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास एफ डैश सी की वैल्यू 0 तो आती है, प्रोवाइडेड कि अगर हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर पाए गिवन फंक्शन पे अलॉन्ग विद द गिवन कंडीशंस, तो हम क्या लिखते हैं एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आती है 0। बट हमें अभी क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, एफ ऑफ के की वैल्यू 0, मतलब लेट्स से अगर के की वैल्यू हम सी ले लेते हैं कांस्टेंट, तो बेसिकली हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ सी की वैल्यू 0। अगर मैं इसको सी मानता हूँ, ये वाला सी और ये वाला सी डिफरेंट है वैसे, ठीक है, इसलिए मैंने पहले के लिया था। आप समझना बात को, अगर मैं एफ ऑफ सी की वैल्यू 0 प्रूफ करना है, मतलब एफ डैश सी 0 आता है बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब जो हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं अगर किसी गिवन फंक्शन एफ एक्स पे, तो उसका मतलब हम वहाँ पे उसका डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश, वहाँ पे बताते हैं एफ डैश सी की वैल्यू 0 आती है। बट इस कंडीशन में हमें, इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है कि एफ ऑफ सी की वैल्यू 0 प्रूफ कर दो। इसका मतलब अगर मैं एक स्टेप ऊपर जाऊँ, मतलब एफ डैश एक्स, एफ डैश सी की वैल्यू 0 आती है, तो मतलब फंक्शन क्या होता है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या होता है बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ डैश एक्स डी एक्स से जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है एफ एक्स। सिमिलरली अगर हमें ये प्रूफ करना है कि एफ ऑफ सी की वैल्यू 0 प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप ऊपर जाएंगे, मतलब कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, नया एफ एक्स बन जाएगा। वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, नया न्यू एफ एक्स बन जाएगा, न्यू एफ ऑफ एक्स। बेसिकली हमें क्या करना है इस फंक्शन में, इस क्वेश्चन में जो हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, हमें इस पे नहीं अप्लाई करना है रोल्स थ्योरम, हमें अप्लाई करना है रोल्स थ्योरम इसके इंटीग्रल वाले फंक्शन पे। अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, इस जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो जो वो फंक्शन बनेगा हमें उस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट कि जब हम डिफरेंशिएट करें तो हमें ये वाला फंक्शन मिल जाए। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें जो रोल्स थ्योरम, हमें जो नया एफ एक्स बनाना है, बेसिकली ऐसे प्रॉब्लम हम क्या क्या बोलते हैं, हम फंक्शन को एज्यूम करते हैं, एज्यूम द फंक्शन। ऐसे प्रॉब्लम्स हम क्या करते हैं, फंक्शन को एज्यूम करते हैं। किस तरीके से एज्यूम करेंगे, लेट्स सी। तो जो हमारा फंक्शन बनेगा जिस पे हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे एक्चुअली में, वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ये हम इंटीग्रेट करेंगे, जो फंक्शन आएगा हम उस पर अप्लाई करेंगे रोल्स थ्योरम। अभी आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। डी इज अ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट डी की जरूरत है नहीं, बट हम अभी मैथमेटिकली चलते हैं आगे, लेटर ऑन वी विल अंडरस्टैंड कि डी अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट अभी के लिए हम लिख लेते हैं इसको। तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, ये वाला फंक्शन आ गया, हमने जो उसको हमें एज्यूम करना था, राइट। अब हमें इस फंक्शन पे अप्लाई करना है रोल्स थ्योरम। अप्लाई, अगर हम अप्लाई भी करने से पहले चेक कर लें कि हम इस पे अप्लाई भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास किस इंटरवल में अप्लाई करना है, 0 से 1 में, राइट। फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 कैलकुलेट कर लेंगे। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से डी आ जाएगा। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ए अपॉन 3 प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी प्लस डी। हम अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 इज द एलसीएम। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d, और इसकी वैल्यू में दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 0। तो जो ये पूरा टर्म है ये 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी यहाँ से, एफ ऑफ 1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू d। तो अगर हम d की वैल्यू 0 भी ले लेते हैं या फिर हम कंसिडर नहीं करते हैं d कॉन्स्टेंट टर्म को, तब भी हमारा एफ ऑफ 0 कितना आता है, उस टाइम पे 0 आता। बट अगर हमने कंसिडर किया है तो इसलिए d आ रहा है, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, d, मतलब एंड पॉइंट्स पे जो हमारा वैल्यू आ रहा है फंक्शन का वो इक्वल आ रहा है। इट मीन्स कि वी कैन अप्लाई रोल्स थ्योरम ऑन दिस फंक्शन।
तो हमें ध्यान ये रखना है कि हम जो रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे वो इस पे अप्लाई नहीं करेंगे, हम जो इसका इंटीग्रेशन आएगा उस पे अप्लाई कर रहे हैं रोल्स थ्योरम। रीजन बीइंग क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एफ ऑफ सी की वैल्यू 0 प्रूफ करना। अगर हमें एफ ऑफ सी 0 प्रूफ करना है, इसका मतलब हमें उस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा ताकि हम जब उसका डिफरेंशिएशन करें तो वही फंक्शन वापस आ जाए। मतलब कहने का एफ डैश सी की वैल्यू, हम जो रोल्स थ्योरम पढ़ते हैं वो अगर ये फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, उस पर पॉइंट सी 0 आता है, राइट। तो हमें अगर हम इसका वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब अगर कोई ऐसा पॉइंट आ गया सी 0 से 1 के बीच में, इट मीन्स कि हमारे पास रूट एग्जिस्ट करेगा। सो नाउ लेट्स apply Rolle's theorem on fx for all x belongs to 0 से 1। इस इंटरवल में हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो क्योंकि हमारा f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, d, f ऑफ 1 की वैल्यू भी d आ गई, इट मीन्स कि रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स कि f डैश x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और ये हमारे पास x क्या हो जाएगा यहाँ पे f डैश c इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली जो f डैश x आया है, बेसिकली यहाँ अगर मैं लिखूँ f डैश x क्या है, बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या आएगा इस फंक्शन का, ये वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। मतलब कि जो हमारा f डैश x है वो कितना आ रहा है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये डिफरेंशिएशन करने के बाद आएगा, राइट। तो यहाँ से मतलब f डैश सी की वैल्यू 0 आ रही है फॉर एनी पॉइंट c एटलीस्ट 1c। तो इसका मतलब जो हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन दिया हुआ था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर उस f डैश सी की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब जो हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, मतलब एक ऐसा पॉइंट आ रहा है एक ऐसा पॉइंट आ रहा है 0 से 1 के बीच में, जिस पॉइंट पे हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है 0। मतलब f ऑफ, अगर मैं इसको बोल दूं g ऑफ x, अगर ये हमारा g ऑफ x है, इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट आ रहा है g ऑफ c जो 0 बता रहा है, एंड c बिलोंग्स टू 0 से 1, c बिलोंग्स टू 0 से ओपन इंटरवल 0 से 1। इसका मतलब हमारा 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, और ये फंक्शन अगर कुछ इस तरीके से जा रहा है, क्योंकि हमारा g ऑफ c कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, g ऑफ c 0 आ रहा है, इट मीन्स it has been proved that the quadratic gx equals to ax square plus bx plus c equals to 0 will have one root in 0 से 1। तो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया। तो एक बार वापस बताता हूँ, एक नया मतलब अलग प्रॉब्लम है ये बेसिकली रोल्स थ्योरम पे अप्लाई करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई ऑन, लेट्स से अगर हम किसी फंक्शन एफ एक्स पे रोल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें जो एफ डैश सी मिलता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद आता है, राइट। तो अगर हमें ये प्रूफ करना हो कि ये लेट्स से जी एक्स है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जी ऑफ सी इक्वल्स टू 0 हो जाए किसी ऐसे सी बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच में। तो हमें ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो हमने इंटीग्रेशन निकाल लिया, यहाँ पे हमें मिल गया एफ ऑफ एक्स जो कि जी एक्स का इंटीग्रेशन था, और हमने इस पे अप्लाई किया रोल्स थ्योरम। जब हम इस पे अप्लाई करेंगे रोल्स थ्योरम तो हमें मिलेगा एफ डैश सी की वैल्यू 0, और एफ डैश सी का मतलब क्या है, जी ऑफ एक्स, राइट। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। अब अगर एफ डैश सी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब एफ डैश सी का मतलब जी ऑफ सी का वैल्यू 0 है। अब और अगर हम ये प्रूफ कर दिए कि जी ऑफ सी मतलब जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, किसी एक ऐसा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे कि जहाँ पे उसकी वैल्यू 0 हो रही है, इट मीन्स कि वो 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा वो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनेगा। इट मीन्स इट हैज एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 and 1। So this was the derivation part. Now let's attempt the question that has been asked in J Advanced 2004. The question is, if p of x equals to 51 into x raised to the power 101 minus 2323 x to the power 100 minus 45x plus 1035, using Rolle's theorem, prove that at least one root of px lies between 45 to the power 1 by 100 to 46. So basically हमें क्या प्रूफ करना है, just like previous question we have seen, अगर हमें ये प्रूफ करना हो किसी भी गिवन फंक्शन में या फिर किसी भी गिवन एक्सप्रेशन में एक इंटरवल हो, लेट से a से लेके b तक, x इक्वल्स टू a एंड दिस इज x इक्वल्स टू b, इसके बीच में एटलीस्ट एक रूट लाई करे। इसका मतलब जो उसका ग्राफ बनना चाहिए वो इसके a और b के बीच से पास करना चाहिए। लेट से फॉर एग्जांपल ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये ग्राफ बन गया लेट से, तो एटलीस्ट यहाँ पे पास कर रहा हो a और b के बीच में, एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो एक जगह पे, लेट से ये पॉइंट c हो, लेट से c 0,
तो ये हमें यही प्रूफ करना है कि जो हमारे फंक्शन है p ऑफ x, तो हमें ये प्रूफ करना है कि p ऑफ c इक्वल्स टू 0 वेयर c बिलोंग्स टू a से b। आई होप द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर टू यू। हमारा अप्रोच क्या होगा प्रूफ करने का, हम कैसे प्रूफ करेंगे। हमने पिछले प्रॉब्लम में भी देखा था कि अगर हमें लेट से a और b इंटरवल के बीच में ये प्रूफ करना हो कि लेट से पी एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इट्स जस्ट अ रफ स्केच, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, तो हमें ये प्रूफ करना है ए और बी के बीच में पॉइंट जो ग्राफ हो एक जगह कट कर रहा हो, एटलीस्ट एक जगह, लेट से दैट पॉइंट इज c,0। तो हमें ये प्रूफ करना है कि p ऑफ c इक्वल्स टू 0 प्रोवाइडेड c बिलोंग्स टू a से b। हमें यही प्रूफ करना है। तो फॉर हम रोल्स थ्योरम में क्या देखते हैं, अगर हमारे पास एक फंक्शन f(x) दिया हो और हम क्या प्रूफ कर देते हैं f' c इक्वल्स टू 0, अगर रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो, राइट। तो अगर हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है px, यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है px, हमें ये प्रूफ करना है कि p ऑफ c इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। समझना बात को, हमें ये प्रूफ करना है कि p ऑफ c इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब अगर ये f' c इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन। ये कैसे आता है, बेसिकली इंटीग्रल। ये बेसिकली हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f' dx। सिमिलरली अगर हमें p ऑफ c इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है तो वी नीड टू फाइंड द फंक्शन दैट इज p ऑफ x dx। बिल्कुल सिमिलर है। अगर हमें f(x) दिया होता है तो हम क्या प्रूफ कर पाते हैं, f' c की वैल्यू 0 हो जाता है बाय अप्लाइंग रोल्स थ्योरम। सिमिलरली हमें ये प्रूफ करना है कि p ऑफ c की वैल्यू 0 होनी चाहिए। फॉर दिस आवर फंक्शन शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ px dx। लाइकवाइज यहाँ पे भी हम देखें तो f' का जो इंटीग्रेशन होता है वही होता है fx। तो बस हम क्या करेंगे, p ऑफ, तो जो हमारा एक्चुअल फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ px dx। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो नाउ लेट्स सी, हम जिस पे रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे हमारा फंक्शन क्या होगा। द फंक्शन ऑन विच वी आर गोइंग टू अप्लाई रोल्स थ्योरम इज, तुम्हारा लेट्स से f(x) कितना हो जाएगा, f(x) की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ px dx, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ px dx हमारा हो जाएगा f(x). तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 51 इंटू एक्स पावर 101 -2323 एक्स पावर 100 -45x प्लस 1035। इस पूरे का dx कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ से 51 इंटू एक्स का पावर 102 अपॉन 102 -2323 इंटू एक्स पावर 101 अपॉन 101, यहाँ पर आ जाएगा -45 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1035 इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। चाहे तो हम लोग लगा सकते हैं, चाहे तो और ना लगाएं, क्योंकि हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा था जब हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट से कोई हमें इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है और वैसे भी हम ये फंक्शन एज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो हम कांस्टेंट नहीं लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास f(x) वैल्यू ये आ गई जिस पे हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। सो नाउ आवर एक्चुअल फंक्शन ऑन विच वी आर गोइंग टू अप्लाई रोल्स थ्योरम इज दिस वन। ये हमारा फंक्शन जिस पे हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हमें दिया हुआ है यूजिंग रोल्स थ्योरम प्रूफ करना है। तो मतलब कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है इन द इंटरवल दिस 45 की पावर 1/100 से लेके 46। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स का पावर 102 अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा 23 इंटू एक्स का पावर 101 -45 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1035 इंटू एक्स। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स का पावर 101 अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से, या फिर ये दोनों टर्म से कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लें अगर हम, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से आ जाएगा एक्स का पावर 100 माइनस -45। और हम क्या करेंगे यहाँ से 23x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से -23x। तो हमारे पास यहाँ से क्या बच जाएगा, एक्स का पावर 100 माइनस यहाँ से आ जाएगा 45। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स का पावर 100 माइनस 45 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 23x। ये हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ x आ गया। तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x की वैल्यू एक्स पावर 100 माइनस 45 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 46x अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स, जिस पे हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे इन द सिंप्लीफाइड वर्जन। तो हमारे रोल्स थ्योरम अप्लाई करने का क्या मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे कि हम इस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। सो फॉर दैट वी नीड टू वेरीफाई कि एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 45 का पावर 1/100 इज इक्वल्स टू 45 का पावर 1/100 होल का पावर 100 माइनस 45, यहाँ पे दूसरा वाला ब्रैकेट आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो ये टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 45 माइनस 45, ये पावर कट जाएगा तो यहाँ से 0 आ जाएगा बेसिकली, एफ ऑफ 45 का पावर 1/100। सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ 46, तो वहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पर जाएगा 46 का पावर 100 माइनस 45। सेकेंड ब्रैकेट में अगर हम देखेंगे तो x कॉमन लेंगे अगर हम, तो x अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 46 आएगा, दैट इज 46 माइनस 46। तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब एफ ऑफ 46 भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो एफ ऑफ ए है वो भी 0 है और एफ ऑफ बी की वैल्यू भी कितना आ रही है, 0। इट मीन्स वी कैन अप्लाई रोल्स थ्योरम ऑन दिस फंक्शन वी कैन अप्लाई रोल्स थ्योरम। अगर हम इस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंगिंग फ्रॉम दिस इंटरवल सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। अब ये फंक्शन हमारा एफ एक्स है, एफ डैश एक्स, एक बार वापस देखते हैं हम लोग। हमारा जो एफ डैश एक्स है वो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का हो जाएगा हमारा पी ऑफ एक्स, क्योंकि हमने क्या किया था, पी एक्स को इंटीग्रेट करके ही हमने एफ एक्स बनाया था। तो वापस अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी एक्स आ जाएगा। इसका मतलब कि एफ डैश सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 0 आ रही है इसका मतलब पी ऑफ सी भी 0 आएगा, राइट। अगर पी ऑफ सी की वैल्यू 0 आ गई, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा एक्चुअल फंक्शन दिया हुआ है ये वाला, ये एक ऐसे सी पे 0 आ रहा है जो कि सी की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रही है, इन दिस इंटरवल 45 का पावर 1/100 से लेके 46। इसका मतलब कि हमारा गिवन इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट सी आ रहा है जहाँ पे हमारा उस एग्जैक्ट फंक्शन जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू 0 आ रही है। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल 45 का पावर 1/100 से लेके 46 फॉर द गिवन फंक्शन टू, मतलब ये हुआ कि अगर हमारा पी ऑफ सी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब इस गिवन इंटरवल में ये फंक्शन की वैल्यू एक रूट हमें दे रहा होगा। सो दिस वाज आवर प्रूफ। हमने कैसे किया वापस एक बार समझ लेते हैं। जब भी हमें इस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि किसी गिवन फंक्शन में या फिर किसी गिवन एक्सप्रेशन पे हमें एटलीस्ट एक रूट आ रहा हो इन द गिवन इंटरवल, तो हमें रोल्स थ्योरम तो अप्लाई करना है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि रोल्स थ्योरम हमें कौन से फंक्शन पे अप्लाई करना है, राइट। क्योंकि हमें प्रूफ करना होता है कि एफ गिवन फंक्शन जो है पी ऑफ एक्स, इस केस में तो हमें ये प्रूफ करना है कि पी ऑफ सी की वैल्यू 0 हो जाएगी वेयर सी बिलोंग्स टू गिवन इंटरवल। तो अब हमें पी एक्स दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन कौन सा होगा, पी एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो हमारा लिए एक्चुअल फंक्शन होगा रोल्स थ्योरम के लिए। तो उस पर हम क्या करेंगे, वेरीफाई कर देंगे पहले कि एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है एफ ऑफ बी के बराबर आ रही है। अगर हम वो वेरीफाई कर पाते हैं, इसका मतलब कि हमारा रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा। और अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा, इट मीन्स कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंगिंग फ्रॉम द इंटरवल ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। अब जब एफ डैश सी की बात करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, पी ऑफ सी हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, पी ऑफ एक्स। और अगर एफ डैश सी की वैल्यू 0 आ रही है, इट मीन्स कि पी ऑफ सी की वैल्यू भी 0 आ रही है वेयर सी बिलोंग्स टू 45 का पावर 1/100 से लेके 46, राइट। अब अगर ये कंडीशन हमने प्रूफ कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हो गया, जो ग्राफ बनेगा इसका, वी आर नॉट ड्रॉइंग द एक्चुअल ग्राफ बट लेट्स से 45 का पावर 1/100 से लेके 46, ये कोई पॉजिटिव नंबर होगा। 45 का पावर एक्स ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा तो 1 से कुछ ज़्यादा नंबर आएगा। लेट्स से ये है पॉइंट x इक्वल्स टू 45 का पावर 1/100 और ये है x इक्वल्स टू 46, राइट। अब हमारे पास एक ऐसा पॉइंट मिल गया c जहाँ पे p ऑफ c की वैल्यू 0 आएगी, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही होगी। मतलब लेट्स से वो पॉइंट कुछ यहाँ पे है, तो ग्राफ कुछ जैसे भी बने मर्जी बन जाए, लेकिन इस यहाँ से पास होते हुए बनेगा ग्राफ, राइट। तो ये जो पॉइंट होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा c, 0। तो ये प्रूफ करता है
कि जो हमारा गिवन फंक्शन है, अगर ग्राफ कुछ ऐसे बनता उसका, इट्स जस्ट अ रफ स्केच, ग्राफ ऐसे बनता तो 45 के पावर 1/100 से लेके 46 के बीच में एटलीस्ट एक जगह कट करेगा, एंड दैट पॉइंट इज सी, वेयर सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. इट मीन्स वी हैव प्रूव्ड दैट गिवन इंटरवल में जो px दिया हुआ है उसमें एटलीस्ट एक रूट आएगा. सो दिस मच वी हैव प्लान फॉर द क्वेश्चंस पार्ट. तो हमने LMVT में भी क्वेश्चंस देख लिए, रोल्स थ्योरम पे भी क्वेश्चंस देख लिए अलॉन्ग विद द थ्योरी पार्ट्स, और हमने LMVT में जो मीन वैल्यू थ्योरम होता है उसका एक्चुअल मीनिंग भी समझ लिया कि जो मीन टर्म यूज होता है उसका क्या मतलब है. कि जब भी कोई भी पार्टिकल, हमने फिजिक्स का एग्जाम्पल दिया था काइनेमेटिक्स से, कि अगर कोई पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करता है विथ डिफरेंट वेलोसिटीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर जो उसका एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे, लेट्स से हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें 6 आ रहा था, 6 किलोमीटर पर आवर. इट मीन्स कि जब भी पार्टिकल ए से लेके बी तक ट्रेवर्स कर रहा होगा, तो वाइल ट्रेवर्सिंग देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट जिस पॉइंट पे उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, एंड दैट इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर. तो ये मीनिंग होता है मीन टर्म यूज करने का मीन वैल्यू थ्योरम में, राइट. सो लाइकवाइज वी हैव गॉन थ्रू ऑल द थ्योरी पार्ट्स एज वेल एज क्वेश्चंस. जितने भी डिफरेंट वैराइटीज के क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते थे मीन वैल्यू थ्योरम पे एज वेल एज रोल्स थ्योरम पे, वी हैव कवर्ड ऑल द वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस. नाउ यू आर वेरी, once you will be able to solve all the questions and we have gone through these topics, it means now you are ready to solve any questions related to JEE Mains as well as JEE Advanced. Also you are ready to attempt new questions as well. तो now आपकी जो दिमाग है वो पूरा खुल चुका है for mean value theorem and mean value theorem as well as Rolle's theorem. So it's time to practice as many questions as possible on this topic so as to improve your concept very clear, right? So now it's time to give some of the questions to be done by yourself. मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी ले रहा हूँ सो दैट कि आपको वापस एक बार रिवीजन हो जाए जब आप खुद से प्रैक्टिस करो. सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं होमवर्क के लिए आप उसको ईमानदारी से सॉल्व करना. ऑल्सो जो क्वेश्चंस हम क्लास में लेते हैं उसको भी आप वापस से सॉल्व करना अपने से. सो हियर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट नीड्स टू बी डन बाय योरसेल्फ टू प्रैक्टिस फर्दर. सो यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चंस और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स at a time. So आप इन प्रॉब्लम्स को भी ट्राई करना अपने एंड पे without looking for the solutions. Also whatever the problems we have discussed in today's class, try to go through all the questions once by your own without without seeing the solutions, so as to make that clear कि आपको कैसे किस पॉइंट पे कैसे LMVT अप्लाई करना है. अभी हमने जो लास्ट 2 प्रॉब्लम देखे थे वो भी अच्छे प्रॉब्लम थे जहाँ पे हम इंटीग्रेशन निकाल के वो हमारा एक्चुअल फंक्शन बन रहा था रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए, टू प्रूफ कि किसी भी इंटरवल में हमारे जो रूट्स आ रहे हैं वो एटलीस्ट एक रूट लाई करते हों, राइट. सो ऑल मेनी क्वेश्चंस व्हाटएवर वी हैव टेकन इन दिस क्लास, प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस. और जो भी हमें होमवर्क दिया गया है हमें अच्छे से ट्राई करना है और ईमानदारी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बिकॉज दिस इज द पैटर्न दैट यू नीड टू फॉलो टू प्रैक्टिस द प्रॉब्लम्स. क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो स्कैटर्ड हो जाएंगे बेसिकली. एंड वी नीड टू जितने भी कॉन्सेप्ट है सभी हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें कब कौन से कब कौन से हमें फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस पे अप्लाई करना चाहिए. ऑल दिस थिंग्स विल बी क्लियर वंस यू विल गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स. और आपको रिवीजन करते रहना चाहिए जो भी आपका पुराना चैप्टर्स हो गए हैं. कीप रिवाइजिंग ऑल दोज टॉपिक्स एज वेल, कि आप ये कह सकते हो कि जो भी आप क्वेश्चन टॉपिक्स पढ़ चुके हो ऑलरेडी, आप उनके सैम्पल क्वेश्चंस को मतलब इकट्ठा करके या फिर कोई ऐसा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस सॉल्व करते रहो आप, सो दैट कि आपके पुराने टॉपिक्स भी रिवाइज होते रहे. विद दिस क्लोजिंग फॉर टुडेज, एंड विल मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर विद some new topics. Till then, take care.